many industries? Oh, nice question. Okay. I have always been a curious mind. Always. So, I I used to crave for things. I want to do something new. I want to experiment something. I experiment with career. I want to experiment with life, every phase of life. So that's how and in fact, the best part is that I never thought of coming into this film industry or television industry or on screen, on television. I always wanted to become an IPS officer. I was good at studies and everything. Yeah, and I was destined to be here. But then still, because I am destined to be here and my passion was something else, again that curious mind comes in where I thought of pursuing one part of my life with this entrepreneurship, where I opened my cafe. Again, the curious mind that I want to try my hand. There is no harm in trying out the things. There is no harm in experimenting the things until and unless it's life threatening. Until and unless it's harmful for others, there is no harm. There is no harm. You can do. So I opened my cafe and that's it. Destined to be in this industry, having a curious mind, want to experiment each and every line of career, each and every phase of my life. It's like whatever I seek, I want to do that. So this is the mantra of my life, and I'm following it. One thing that I can say is that this is definitely the best mantra to go forward to. And ma'am, to be honest, you have been a part of reality shows as well. आपने 2009 में Splitsvilla किया, and recently you entered Big Boss, which was the one of the most famous seasons. And how does it feel to be a part of reality shows? क्योंकि आपने शुरुआत भी reality show से की थी Splitsvilla से, and जब entire country went into lockdown, जब lockdown धीरे धीरे रिलीज होता गया, आप वापस एक घर के अंदर कन्फाइन हो गई with a certain amount of people. So वो जो पूरा एक्सपीरियंस था आपका, उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? Yes, being in lockdown and then entering in Big Boss house, which was a lockdown itself, with few housemates, you had to survive inside. Experience कुछ ऐसा था कि पूरा लॉकडाउन आप भी घर में बैठ के आपने निकाला, हमने भी घर में बैठ के निकाला. बिग बॉस में और असल लॉकडाउन में सिर्फ फर्क इतना था कि बिग बॉस में हमें लड़ने का, टास्क करने का, एंटरटेनमेंट का एक जरिया मिलता था. लेकिन ये वाला जो लॉकडाउन था, ये बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट नहीं था. इट वाज ऑल अबाउट यू, बिकॉज आई हैव हर्ड दैट पीपल वर स्टेइंग बाय देयर ओन, अकेले, like single-handed. No one is there, no domestic help is there, no family member is there, no friends there, alone. तो आई थिंक वो बिग बॉस वाला जो लॉकडाउन था ना, दैट वाज मच बेटर देन दिस दैट लॉकडाउन दैट वी ऑल फेस्ड लास्ट ईयर 2020. नो, बट या बिग बॉस वाज अमेजिंग. डेफिनेटली. और जिस तरह की एंटरटेनमेंट की आप बात कर रहे हैं, वो तो हमने हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे देखा ही है, एंड जस्ट टू वॉच इट वाज सो एंटरटेनिंग. तो आई एम श्योर आपके लिए उस घर में रहना कितना ही ज्यादा एंटरटेनिंग रहा होगा. बहुत एंटरटेनिंग रहा, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम एक यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल एलपीयू, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, दे हैव डिफरेंट माइंड्स, दे हैव डिफरेंट थॉट प्रोसेस. और वैसे ही उस घर में सब डिफरेंट थॉट प्रोसेस वाले लोग थे जिनके साथ रहना था. किसी की सोच ए पे है, किसी की सोच जी पे है, कोई मिडिल ग्राउंड पे ही है. दे कैन नॉट गो अप, दे कैन नॉट गो डाउन, एंड यू हैव टू फाइट विद देम just to move ahead. Every single day you have to fight, you have to give all in. So difficult था, बहुत difficult था, क्योंकि ऐसे brains के साथ match करना जिन्होंने, it's like all of them there were that उन लोगों ने कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में. हम स्कूल कॉलेज में फिर भी एक सेम लेवल पे होते हैं, दैट वी आर स्टडिंग टुगेदर. बट देयर बिग बॉस हाउस में हर किसी का अपना ऊपर नीचे ग्राफ है करियर का. किसी ने 2 शोज किए हैं, किसी को समवन वाज अ लेजेंड. तो उनके साथ मैच कर पाना
boom, it was very difficult, but entertaining at the same time with all the fights and all the masti that we used to do. Indeed. Definitely, I'm sure it must have been a really memorable experience for you. Yeah, very, very. So, ma'am, आपने जितने shows किए हैं throughout your career till now, they have been on so many different channels, be it Star Plus, Colors, Sub, आप almost हर channel पे आ चुकी है. So वो जो entire feel है कि you've done so many shows, काफी negative roles भी जो आपने किए that उनको भी viewers ने इतना positively appreciate किया है, इतना beautifully उन्होंने आपके character को accept किया है. So how does it feel? बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत इम्पोर्टेंस फील होती है खुद की, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ आज तक एक ही चैनल पे काम किया और सिर्फ 2 चैनल्स पे काम किया, बट हाँ, सारे ही चैनल्स पे काम करना इट्स अ बिग थिंग इन इटसेल्फ. तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है खुद के ऊपर. और क्या होता है ना कि आप तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप तब तक एक सेलिब्रिटी नहीं बन सकते जब तक आपको दूसरे लोग प्यार करना ना शुरू करें, या आपके उस कैरेक्टर को या आपके उस रोल को पसंद ना करें. तब तक आप क्लाइंब अप नहीं कर सकते. You know, you cannot succeed in this industry especially. तो यहाँ पे आप अच्छा काम करें और आपका वो जो solid fan base बनता है, that is what makes you a celebrity in this industry. तो वो इतना प्यार मिला तो बहुत proud feel होता है, बहुत. I am sure it must be really overwhelming, ma'am. पर कभी-कभी देखा जाता है कि जो एक्टर्स है वो नेगेटिव रोल करने से जरा कतराते हैं. दे आर अ लिटिल शाय सेइंग कि यू नो हमें एक नेगेटिव इमेज नहीं बनानी है. वी डोंट वांट टू बी अप्रोच्ड ओनली फॉर नेगेटिव रोल्स. बट आपके जो 2 रोल्स है, बीट इन ये है मोहब्बतें एंड बीट इन बालवीर एज वेल, ये प्रोबेबली आपके सबसे बड़े 2 रोल्स थे जो आपने बिल्कुल ब्यूटीफुली निभाए हैं. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट पीपल जो नेगेटिव रोल्स को एक्चुअली नेगेटिवली देखते हैं? ये लोग कौन होते हैं? ऑडियंस होती है. हम भी कई बार जब एक एक्टर होके भी जब हम कोई मूवी देखते हैं, कोई सीरीज देखते हैं, तो हमें भी सामने वाले की एक्टिंग देख के या सामने वाले का किरदार देख के रोना आ जाता है. बीइंग एक्टर हमें पता है वो एक स्क्रिप्ट है, वो लोग फॉलो कर रहे हैं, और लेकिन वो इतना शिद्दत से करते हैं ना कि उन लोगों को बहुत, हम लोगों को ही बहुत इतना उस चीज के अंदर जेलप हो जाते हैं ना, इतना सेम नोट पे आ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक्चुअली कुछ हो रहा है. तो जब हम लोग ऐसा फील करते हैं तो मैं मान सकती हूँ कि हमारी जो नॉर्मल ऑडियंस है उनके लिए हम किरदार भी किरदार नहीं रहते, असल जिंदगी में नेगेटिव ही हो जाते हैं. यू नो, रही बात तो मैं उनको गलत नहीं कहती हूँ, क्योंकि हमारा भी थॉट प्रोसेस है, होता है ऐसा. रही बात जो एक्टर्स या फिर जो स्ट्रगलर फ्रेंड्स हैं मेरे, फ्रेंड्स मैं बोलना पसंद करूंगी, क्योंकि स्ट्रगलर वर्ड बहुत अजीब लगता है मुझे सिर्फ अकेला सिंगल बोलना. तो स्ट्रगलर फ्रेंड्स जो है मेरे, वो लोग नेगेटिव करने से कतराते हैं. मैंने सुना है ऐसा कि उनको नेगेटिव नहीं करने, उनको पॉजिटिव रोल्स ही करने हैं. ऐसा नहीं है. नेगेटिव रोल्स, बिकॉज मैंने अपने करियर की शुरुआत एक पॉजिटिव रोल से की थी. आई वाज द लीड. अगर मुझे पैटर्न फॉलो करना होता तो you here? Yes, ma'am. Yeah, जो कि टेलीविजन इंडस्ट्री में होता है कि आप अगर एक आपने लूप पकड़ा तो आप उसी लूप में रहते हैं, राइट? आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस मिथ, क्योंकि ट्रस्ट मी, जब पहली चीज काम को इम्पोर्टेंस देना एक बहुत बड़ी चीज है. आई हैव लर्नड वन थिंग इन माई लाइफ, नेवर से नो टू वर्क. कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है. You know, I always look at those people जिनके पास काम नहीं है, जो घर पे बैठते हैं. I have seen actors who are sitting at their home, and I'm sure LPO में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको एक्टर बनना है. I'm sure होते हैं. एक और अगर खुल के नहीं सामने आते तो अंदर कहीं ना कहीं एक एक्टर छुपा होता है हर एक इंसान के अंदर, मोस्टली. तो नेगेटिव रोल करने से बिल्कुल भी कतराइएगा मत, क्योंकि इट्स अ मिथ. इनफैक्ट मैं ये जरूर बोलूंगी दावे के साथ कि जो आप अपना हुनर, अपनी कला, अपनी जो एक्टिंग है, वो आप नेगेटिव रोल में जितना दिखा सकते हैं उतना पॉजिटिव में नहीं दिखा सकते. आपको नेगेटिव रोल्स में आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज यूज करने का मौका मिलता है, एवरीथिंग. वेयर एज पॉजिटिव रोल्स, क्योंकि उनका एक दायरा बन चुका है,
उनको एक एक सीमा में ही देखना पसंद किया जाता है कि आप या तो रोइए या फिर आप हंसिए या फिर आप रोमांस